Jai Hind to all of you students. As you know, in previous days we have done up to our lesson number 6. Okay. Now from today we are starting our lesson number 7. That is nothing you can't do. ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो. ठीक. First we will read the lesson. A shiver ran through my spine as I boarded the train to Delhi. It was a cool November evening, and I was thankful that the saw I on my shoulder would go unnoticed. The shawl I was here, shawl means shawl. ठीक है, यहाँ shawl का मतलब क्या है? शॉल. और ये पूरी जो स्टोरी है ये कौन सुना रहे हैं? राइटर सुना रहे हैं. The show I was constant companion of mine 12 months of the year, for it helped hide the stump that was once my right hand, and it was one such strain that had given me this disability. और राइटर क्या बोल रहे हैं कि शॉ वो थी जो वो हमेशा, शॉ मतलब शॉल जिससे पंचा होता है ना, गमछा होता है वो. ठीक है, राइटर बोल रहे हैं कि वो 12 महीने उनके कंधे पर रहता था, है ना, कभी हटता नहीं था वो. 3 years earlier, at the beginning of the third millennium, I left my seat in an express train after having supper. I washed my hands at the sink next to the open compartment door. As I finished and turned, the train suddenly jerked, throwing me off balance. I was flung right out of the door. और राइटर बता रहे हैं कि उनकी पहले एक ट्रेन में जाते थे, वो 12 महीने उस एक ही ट्रेन में जाते थे, लेकिन एक एक्सप्रेस ट्रेन मिल गई थी, इसलिए उन्होंने उनको फिक्स ट्रेन और फिक्स सीट छोड़ दी थी. ही लेफ्ट इट. एज आई लैंडेड ऑन माई बैक द कैरियज व्हील सर्व माई राइट आर्म अबाउ माई एल्बो मीन्स कोहनी. For the next couple of the hours, I lay on the track, bleeding and in the extreme pain until a track inspector passing by found me. I was taken to hospital. और बता रहे हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था राइटर का. ठीक है, I was taken to the hospital. My served limb was too damaged to be sewn back. They said that I was critical, but I lived with his disability, this stump of a hand that I hide from everyone with a shawl. The compartment was almost full, but I am thankful that my seat was reserved. और बता रहे हैं वो कि कंपार्टमेंट पूरी तरीके से भरा हुआ था, लेकिन जिस सीट पे राइटर बैठते थे हमेशा से, वो सीट आज भी उनके लिए रिजर्व थी और उस पर कोई नहीं बैठा था और वो खाली थी. ठीक. Sorry. I walked nervously to my seat, gripping my suitcase in my left hand for many minutes. After I had sat down, I started at the floor to shy to meet the eyes of my travel mates, fearful lest someone noticed my disability. The cheerful, lively voices of the people around me made me realize that, unlike me, they were all young boys and girls in their early teens. There were 2 girls and 3 boys, all talking excitedly. Hey, you are too participating in emblems? Inquired a tender voice from my right. और वहाँ पर जिस कंपार्टमेंट में राइटर बैठे हुए थे, वहाँ पर उस कंपार्टमेंट में बहुत सारे टीनेजर्स, लड़के लड़कियाँ बैठे हुए थे उनके आसपास. उसमें से उन्होंने सडनली एक आवाज़ सुनाई दी उनके पड़ोस से कि हे, यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एम्बिलिम्स. और उनको सुनाई दिया कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो क्या. इंक्वायर्ड द टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट. उनके सीधे तरफ से उनको ये आवाज़ सुनाई दी. ठीक. I am walking to you, sir. This time I realized that the athletic boy sitting to my right was addressing me. और उनके सीधे हाथ पर जो लड़का बैठा हुआ था वो एथलेटिक होता है. एथलेटिक मतलब क्या होता है? जो रेसेस में दौड़ते हैं उनको एथलेटिक बोलते हैं, स्पोर्ट्स वालों को. I also realized to my horror that the shawl
had slipped from my right shoulder, revealing my stump for everyone to see. Tears filled my eyes. I don't understand. What do you mean? I managed to answer in a choking voice. Manjeet, don't upset him. सेट द गर्ल सिटिंग अपोजिट मी. और उनके पास में जो लड़की बैठी होती है वो उस लड़के को समझाती है कि मंजीत प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब मत करो. बट ही मीन नो हार्म यू नो. ही एज्यूम्ड यू टू आर गोइंग टू दिल्ली to participate in the Olympics as well are. This is because we are all like you. I was startled. Once again, I meekly raised my eyes. The girl smiled at me. और जिसे अपन कभी नीचे निगाह करके एकदम से ऊपर उठाते हैं तो कैसे करते हैं अपन, वैसे राइटर ने भी किया और लड़कियां उन्हें देखकर मुस्कुराईं. शी वॉज नॉट मोर देन 14. और वो जो लड़कियां थी जो लड़कों उनको देख के हंस रही थी राइटर को, वो 14 ईयर से ज़्यादा की नहीं थी. She had the face of an angel. She was wearing a tracksuit and for a right hand she had stump too, but she was not hiding it. On the contrary, it seemed to me she was flaunting it confidently. Then I looked at my right. The boy she called Manjeet gave me the biggest smile I have never seen. और जो उनकी राइट हैंड साइड में जो लड़का बैठा हुआ था जिसको लड़की ने कहा था कि मंजीत डोंट डिस्टर्ब हिम, उसने राइटर को देख के स्माइल दिया और बहुत बड़ी वाली स्माइल दी, जैसा कि राइटर ने कभी कोई स्माइल आज तक वैसी देखी नहीं थी. ही टू वोर अ ट्रैक सूट. और ये सब एथलेटिक्स थे तो इन लोगों ने क्या पहन रखा था, ड्रेसअप क्या था इनका, ट्रैक सूट्स पहन रखे थे इन लोगों ने और हाथ में बैंड्स थे इनके. व्हाट इज दिस एयर ओलंपिक्स आई मैनेज टू से. तो राइटर को ओलंपिक्स का मतलब समझ में नहीं आया तो राइटर ने उनसे पूछा कि बेटा इसका मतलब क्या होता है. ओ सेड मंजीत. तो मंजीत बोलता है कि ओ सो यू रियली डोंट नो. तो क्या आपको नहीं पता है, सच में नहीं पता है. वेल आई एम सॉरी, लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ. फर्स्ट आई एम मंजीत. द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू शाहिबा. द बॉय सिटिंग एट द विंडो इज Kumaraswamy, Kumar for short, and the one on the assless seat is Vikas. तो पहले तो मंजीत बोलता है कि सच में आपको नहीं पता है, ठीक है लेकिन सबसे पहले आप हमारा इंट्रोडक्शन ले लीजिए. वो उन चारों के नाम बताता है और इसलिए मतलब होता है खिड़की के साइड. ठीक है, खिड़की के साइड जो लड़का बैठा था उसका नाम था विकास. एंड आई एम एंजल सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल. और जो लड़की बहुत सुंदर थी जो राइटर को एंजल जैसी लग रही थी, परी जैसी लग रही थी, उसका नाम भी एक्चुअली में क्या था, एंजल था. ठीक है. They all said hello to me as they introduced. I respond meekly. और उन्होंने मुझे हेलो किया और मुझे बताया कि ओलंपिक्स क्या होता है. I was told that 1981 was declared the International Year of Disabled Persons. और राइटर ने उनको बताया कि 1981 जो था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन था. ठीक है, उसको उस साल को क्या बोलते थे, मतलब जो डिसेबल्ड पर्सन मतलब अपंग अपाहिज लोग जो होते हैं उनका साल कहा गया था उसे. टू कमेमोरेट दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक वाज हेल्ड इन टोक्यो. और जो पहला ओलंपिक था, ओलंपिक क्या होता है, जो अपाहिज लोगों के लिए जो दौड़ होती है उसको बोलते हैं ओलंपिक. और वो सबसे पहली दौड़ कहाँ हुई थी, टोक्यो में. तो इस पूरे लेसन में यही समझाया गया है. इस लेसन का क्या है मतलब पूरे लेसन का जो अपन सार बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोल सकते हैं, वो क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है जो नॉर्मल लोग कर सकते हैं और नॉर्मल लोग कर सकते हैं और डिसेबल्ड पर्सन्स नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ that is enough for today. I will send you the PDF of the question answers of this lesson. You have to complete your copies sincerely. Thank you. Jai Hind.